سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں پی ٹی آئی حکومت کون کنٹرول کرتا تھا؟ بشرا بی بی کی ڈائری کے چشم کشا انکشافات سامنے آ گئے۔ عدلیہ، فوج اور حکومت پر کون کیسے دباؤ ڈالے گا؟ ڈائری میں سب درج ہے۔ بشرا بی بی نے دعائیہ الفاظ کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی کی ذہن سازی کی اور اس مقصد کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو باغیانہ الفاظ استعمال کرائے گئے۔ ڈائری سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بشرا بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کو ہدایت دیتی رہیں کہ کن الفاظ میں اور کیا دعا کرنی ہے اور عدلیہ پر کتنا دباؤ ڈالا جائے کہ منفی فیصلہ نہ آئے۔ تحریر سے ثابت ہوا بشرا بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاسی ڈکٹیشن بھی دیتی رہیں۔ بشرا بی بی کی ڈائری کے انکشافات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کس کو کیسے چلانا ہے، حکومت، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ کو کیسے دباؤ میں لانا ہے، عدلیہ، فوج اور حکومت پر کون اور کب دباؤ ڈالے گا۔ بشرا بی بی پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی کے فیصلے کرتی رہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی تمام فیصلے اقدامات بشرا بی بی کے حکم پر کرتے رہے۔ سابق وزیر اعظم مکمل طور پر بشرا بی بی کے زیر تسلط تھے۔ بلیٹن کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عدالت عظمیٰ نے سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ کیس کا متفقہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ آئین کے خلاف ہے۔ متفقہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتا۔ جسٹس منیب اختر کا اضافی نوٹ بھی متفقہ فیصلے کا حصہ ہے۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹس کے خلاف درخواستوں پر فیصلے کے لیے عدالت نے فریقین کو الیکٹرانک نوٹس بھجوائے گئے تھے۔ 19 جون کو چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل بینچ نے کیس کی 6 سماعتیں کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹس کے خلاف درخواستوں پر سماعتیں کی۔ درخواست گزاروں نے آرڈرز اینڈ ایکٹ کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں۔ تو دوسری جانب وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ کالعدم قرار دینے کے فیصلے سے نواز شریف کے کیس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ آئین میں طریقہ کار واضح ہے کہ اداروں نے کیسے چلنا ہے۔ عدالت کا کام کیسز کا فیصلہ کرنا ہے اور لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ پارلیمان کے اختیار میں عدالت کی بار بار مداخلت اچھی روایت نہیں۔ اس مداخلت سے ادارے مضبوط نہیں، کمزور ہوں گے۔ انہوں نے کہا تاثر چاہتا تھا کہ پارلیمنٹ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا گیا۔ یہ قانون بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشن کا پرانا مطالبہ تھا۔ سمجھ سے بالا تر ہے، جس ڈاکٹر سے شفا نہیں مل رہی کہا جا رہا ہے دوسرا آپریشن بھی اسی سے کرایا جائے۔ آئین کہتا ہے آپ اپنی مرضی کا وکیل رکھ سکتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم چننے کا معاملہ حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی آج دوسری بیٹھک ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے نگراں وزیر اعظم کے لیے سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی کا نام تجویز کر دیا ہے، جبکہ دیگر ناموں میں صادق سنجرانی، حفیظ شیخ، میاں محمد سومرو، فواد حسن فواد شامل ہیں۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے پیش کیے گئے 3 ناموں میں شامل چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئین ہمیں 3 دن کی رعایت دیتا ہے، امید ہے اس سے پہلے معاملہ حل کر لیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں چیئرمین پی ٹی آئی کی 7 مقدمات میں حاضری معافی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے عدالت نے عبوری ضمانتیں خارج کر دیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں چیئرمین تحریک انصاف کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں حاضری معافی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر اور اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد علی شاہ کے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سنا دیا، جس میں عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کی ضمانت کی درخواست عدم پیروی پر خارج کرتے ہوئے حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی۔ قبل ازیں چیئرمین پی ٹی آئی کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں حاضری معافی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اور خبر یہ جانیے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے زیر صدارت سندھ کابینہ کے الوداعی اجلاس کے دوران پوری کابینہ نے ان کی خدمات کو بے حد سراہا اور ڈیکس بجا کر داد دی ہے۔ سندھ کابینہ کے الوداعی اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خطاب کرتے ہوئے پوری کابینہ، بیوروکریسی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پورے عملے، بالخصوص چیف سیکرٹری سہیل راجپوت اور سابق چیف سیکرٹری
शाह का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके साथ बेहतरीन काम किया। उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी ने पूरी ब्यूरोक्रेसी को बेहद इज्जत दी है, जिस पर चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत ने पूरी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी हर कदम पर रहनुमाई की। सिंध में 2022 से सैलाब की तबाही देखकर हिम्मत हार चुका था, लेकिन सैलाब से निपटने के लिए सिंध काबीना के मेहनत से सब मुमकिन हुआ। मुराद अली शाह ने कहा हमने रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए हैं, हमने दिल से सैलाब मुतासरीन की भरपूर खिदमत की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन को घर और मालकान को टाइटल भी दे रहे हैं। इजलास से खिताब के दौरान वजीर आला ने थर में कोयले और बिजली की पैदावार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हुकूमती मुद्दत मुकम्मल करके इज्जत से अपनी आवाम के पास जा रहे हैं। हमारे वोटर्स हमारे सपोर्टर्स नहीं बल्कि वो हमारे भाई बहन हैं। उन्होंने कहा कि हम 3 माह के बाद वापस आएंगे और फिर खिदमत का सिलसिला दोबारा से शुरू होगा। इस मौके पर तर्जुमान के मुताबिक काबीना अरकान का कहना है कि वजीर आला सिंध के अवाम के लिए खिदमत काबिले तारीफ हैं। उन्होंने हमेशा से सूबे से मुतालिक पूरी काबीना के मशवरों का एहतराम किया है, तमाम मकतबा फिक्र के लोगों को साथ लेकर चले हैं। सिंध काबीना अरकान का कहना है कि वजीर आला ने सूबे भर में देही और शहरी तफरीक को खत्म कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आज से आटा, घी, चीनी, दालें सस्ते कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी अहकामात पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने टारगेटेड सब्सिडी का आगाज कर दिया। 5 बुनियादी अशिया आटा, घी, चीनी, दालें और चावल आज से सस्ते तरीन रेट्स पर मुहैया किए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रार्ड घराने सब्सिडी के लिए अहल तसव्वुर होंगे, जिससे मुल्क भर की तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी मुस्तफीद हो सकेगी। और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे। उनकी अपीलों में बड़ी जान है। नवाज शरीफ को बेबुनियाद और इंतकाम की बुनियाद पर सजाएं होती थी। इन्हीं अदालतों से नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा और वो बाइज्जत बरी होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा चेयरमैन पीटीआई ने जेल के जो हालात बयान किए बिल्कुल वही है, यही हालात कभी मैंने भी बयान किए थे। मैंने जेल में 4 माह गुजारे। चेयरमैन पीटीआई रात को 2 से 3 मरतबा नहाया करें, गेट पर चादर डाल दिया करें, कपड़ों कीड़ों से बचने के लिए कान में कॉटन डाल दिया करें। अपने तमाम तजुर्बात उन्हें बता दिए। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर ने कहा चेयरमैन पीटीआई मेरे तजुर्बात पर अमल करके अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। मेरी इतलात के मुताबिक जेल में ऐसे हालात नहीं, इन्हें बेहतर अंदाज में रखा गया है। साबिक वजीर आजम को बेड, टेबल, फैन की सहूलत है। जेल तो जेल है, कोई होटल नहीं। उन्होंने अदालत में सहूलत की दरखास्त दी है। अदालत से इजाजत लेकर घर से खाने की सहूलत मिल जाएगी। सिंध काबीना के आखिरी इजलास में बड़ा फैसला। मौजूदा दौर में तैनात पुलिस और इंतजामी अफसरान को हटाया नहीं जा सकेगा। सिंध काबीना ने निगरां हुकूमत का तकर्रुर और तबादलों का इख्तियार स्लिप कर दिया। निगरां सिंध हुकूमत अफसरान के तकर्रुर और तबादले नहीं कर सकेगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जिल इनाम मेमन ने कहा वजीर आला सिंध शाह की ज़ेरे सदारत सिंध काबीना का अलविदाई इजलास हुआ। काबीना ने निगरां हुकूमत के दौरान तकरीरों पर पाबंदी आयद कर दी। सिंध काबीना ने SPSC की भर्तियों का सिलसिला जारी रखने का फैसला किया। SPSC की भर्तियां जारी रखने का फैसला किया गया है। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील स्पेन के गांव छोटा दत्ता खेल में बरकली में दूल्हे की फायरिंग से 3 कम उम्र भतीजे जाँ भाग, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक दूल्हे हमीदुल्लाह ने शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग की। फायरिंग से जाँ बहक होने वाले बच्चे इसके 3 कम उम्र भतीजे थे। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 14 और 8 वर्षों के दरमियान है। SHO स्पेन वाम अहमद गुल के मुताबिक जख्मी दोनों बच्चों को दवाबा जिला हंगू मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है मुल्जिम का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। मुल्जिम की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अमरीकी जरीदे में शाये होने वाले साइफर के मुबैना मतन के हवाले से साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर का मौक़िफ़ सामने आ गया। साइफर लीक होने से मुतालिक साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर का कहना है जरीदे में स्टोरी लिखने वाला कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि डॉक्यूमेंट सही हैं या गलत। हिना रब्बानी खर ने कहा कि खबर में बार बार कहा गया कि सोर्स मिलिट्री है, मुझे लग रहा है कि सोर्स से मुतालिक उल्टा कहा जा रहा है। हिना रब्बानी खर ने कहा कि एक फैक्ट है कि एक साइफर गायब है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद कहा था। साबिक वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि चेयरमैन PTI के बाद जो हुकूमत आई क्या उसने रूस से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए? क्या हमने यूक्रेन पर न्यूट्रल मौक़िफ़ ख़त्म कर दिया? हिना रब्बानी खर ने मज़ीद कहा कि साजिश के खदोखाल वजूद ही नहीं रखते।
मजीद खबरें शामिल करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट पर सिफारती साइफर शाया होने के बाद एक बार फिर अदालत आलिया अख्तियारात पर मबनी अदालती कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। पार्टी की जानिब से जारी किए गए एलामिया में इस बात पर जोर दिया गया कि साइफर से मुतालिक रिपोर्ट शाया होने से चेयरमैन पीटीआई के बयानात की सदाकत मजीद मुस्तहकम हो जाती है। पीटीआई की जानिब से कहा गया कि अदालती कमीशन साइफर के मामले की मुकम्मल तहकीकात करे और बाद अज़ां उसके नताइज को मंजर आम पर लाए। पीटीआई के तर्जुमान ने कहा कि रिपोर्ट के शफात से जाहिर हुआ है कि पीटीआई की हुकूमत का तख्ता तहरीक अदम एतमाद के जरिए उल्टाया गया, जो एक साजिश थी। बात करते हैं जश्न आज़ादी की, तो दिल दिल पाकिस्तान मेरा प्यारा पाकिस्तान। जश्न आज़ादी में बस 3 रोज़ बाकी, जगह जगह सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। अवाम में जश्न आज़ादी का जोश व वलवला उरूज पर पहुंच गया। स्टॉल्स पर रश, कोई परचम, कोई झंडियाँ तो कोई बेच, हरी चूड़ियाँ और टोपियाँ खरीदने में मसरूफ़। छोटे बड़े सभी जश्न आज़ादी के दिन के लिए पुरजोश हैं। नन्हे बच्चों का कहना है आज़ादी धूमधाम से मनाएंगे। वालिदैन भी बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने में मगन है। और पाकिस्तानी नजात कैनेडियन कौंसलर आयस्मा मलिक टोरंटो की पहली मुस्लिम डिप्टी मेयर बन गई हैं। सिटी ऑफ टोरंटो की नई मेयर ओल्विया चाव ने उनकी तकर्री का बाकायदा ऐलान किया है। आसमा मलिक गुज़िश्ता बरस सिटी इलेक्शन में वार्ड 10 से कौंसलर के इलेक्शन जीती थीं और वो हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम कौंसलर थीं। साबिक मेयर जॉन टोरी के इस्तीफे के बाद ओल्विया चाव मेयर के ओहदे पर कामयाब हुई और आसमा मलिक को डिप्टी मेयर बना दिया गया। अमरीकी रियासत हवाई के जंगलात में लगी आग से हलाक अफराद की तादाद 53 हो गई। आग से सैकड़ों मकानात और इमारतें मुकम्मल जल गईं। तूफ़ानी हवाओं की वजह से आग बुझाने में शदीद मुश्किलात के सबब तबाही ना रोकी जा सकी। जंगलात में लगी आग से तारीखी सयाहती मकाम जलकर तबाह हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हवाई के जंगलात में आग को बड़ा सानहा करार दे दिया। आग के सबब काउंटी मार्वी में बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। आग लगने के बायस मुतादिद बिजली के खंभे भी गिर गए। रियासती हवाई के गवर्नर का कहना है आग से होने वाले नुकसान का मुकम्मल अंदाज़ा लगाने में महीने लग सकते हैं। और बैनुल-अक़वामी खबर से आगाह करें। अमेरिका में रोलर स्केटिंग करने वाली 15 साल लड़की ने 12 अफराद के ऊपर से कलाबाजी मारकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाली 15 साल मिया पैटरसन ने 12 अफराद के ऊपर से रोलर स्केट्स पहनकर कलाबाजी मारकर खवातीन की कैटेगरी में रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मिया पैटरसन के मुताबिक उन्होंने पहली बार रोलर स्केट 11 साल की उम्र में पहने थे, जबकि वो हाफ हाई ट्रिक्स करके 13 साल की उम्र में कर रही हैं। शुरू में उन्होंने कलाबाजियों की कोशिश पर परफॉर्म किया है। उन्होंने कहा कि उनके दोस्त ने उन्हें अपने ऊपर से कलाबाजी मारने का कहा था। पहली कोशिश में उन्होंने कामयाबी से कलाबाजी मारी और उन्होंने कहा कि दोनों दोस्त मिलकर 8 से दीगर अफराद पर कलाबाजी मार चुके हैं। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत के मुकाबले में मजबूत करार दिया है। उनका कहना है कि भारत की टीम को डेवलप करने के बजाय तबाह किया जा रहा है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन ज़का अशरफ ने क्रिकेटर्स की फलाह बहबूद के लिए अच्छे इकदाम किए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुश्किलात में घिरे हुए क्रिकेटर्स का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने नौजवान फास्ट बॉलर की वीडियोस देखकर उनकी रहनुमाई करने की पेशकश की है। नौजवान फास्ट बॉलर को माजी की तरह क्रीज के इस्तेमाल, फील्ड प्लानिंग और यार्ड करने के बारे में बताया जा सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।